Students, now we are discussing new topic occurrence of metal and extraction of metals. We know that most of the metals are obtained from the earth crust, and some metals are obtained from seawater also. So most of the metals are obtained from the earth crust in the form of rock. uh, in the rock there are many salts of metals. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, calcium carbonate, magnesium carbonate, etc. Minerals. There are minerals, ores, and gangue. There are three definitions. The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as metal. When we dig out uh, the rocks of the um, raw metal, the raw minerals, it is called the minerals. Metals. It is called minerals. Ores. What is ore? So at some places minerals contains a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. So uh, from minerals, if some particular metal is in a high percentage, high proportion, and can be profitably extracted, it is called, these minerals are called ores. सबसे पहले तो मिनरल्स को मिनरल्स के फॉर्म में जो रॉक्स हमको मिलते हैं उसका एनालिसिस किया जाता है लेबोरेटरी में. उसके बाद उसमें डिसाइड किया जाता है कि उसमें से कितनी मेटल्स मिलेगी. उसके बाद ही उसको एनालाइज किया जाता है और बाद में उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है जिससे कि वो प्रॉफिटेबल बने. गैंग. ores obtained from the earth crust does not contain ores of elements only. एलिमेंट्स के साथ कई सारी चीज़ें अंदर होती है जो इम्प्योरिटी होती है. वो इम्प्योरिटी है सॉइल, सैंड एंड कंपाउंड्स ऑफ अदर मेटल्स एटसेट्रा which are called gang. Together they are called gang. It means the impurities present in ore are called gang. Now, classification of metals on the basis of reactivity. So we have already discussed about um, reactivity series. So reactivity series, we have already discussed this reactivity series. So potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, they are upper portion metal, the medium portion metal, and the last portion or lower portion metal. The metals of low reactivity. The metals of low reactivity it found at the bottom of the reactivity series are least active. Often found in a free state, copper and silver are also found in sulfide or oxide O. तो इसमें कॉपर और सल्फर के कॉपर और सिल्वर के अलावा गोल्ड और प्लेटिनम भी है. मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. तो द मेटल्स एट द मिडल एरिया ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव. They are found in the earth crust mainly as oxide, sulfide or carbonate. Zinc, lead, iron, etc. metals are moderately reactive. Metals of high reactivity. The metals at the top of reactivity series are highly reactive. As for example, potassium, sodium, magnesium, calcium, aluminum. They are highly reactive metal and
they obtain from the earth crust. All of the metal obtained from the earth crust. Now, a chart for the extraction of metals from its ores. This chart is also important because it can be asked in your exam in 3 or 4 marks. और उसको कंसंट्रेशन किया जाता है, कंसंट्रेशन के बाद उसमें कौन कौन सी मेटल है. अगर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी है, मेटल्स ऑफ लेस रिएक्टिविटी है, उसी हिसाब से जो एक्सट्रैक्शन मेथड है उसको चॉइस की जाती है. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर एंड प्योर मेटल, तो इसका हाई रिएक्टिविटी है तो मोल्टन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करके इसमें से प्योर मेटल ऑब्टेन की जाती है. मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी है, उसमें कार्बोनेट और सल्फाइड और होती है, उसमें से कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद ये ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करके उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है. और मेटल्स ऑफ लेस रिएक्टिविटी तो मोस्टली इट इज ऑब्टेन इन सल्फाइड और उसको रोस्टिंग किया जाता है, उसमें से मेटल और बाद में उसकी रिफाइनिंग की जाती है. नाउ एनरिचमेंट ऑफ ओर. तो ओर का एनरिचमेंट, तो उसके साथ जो गैंग्स है उसको रिमूव करके जो ओर के पार्टिकल, सिर्फ मेटेलिक ओर के पार्टिकल है उसको अलग किया जाता है, तो इसको बोला जाता है एनरिचमेंट. एंड ये एनरिचमेंट की अलग अलग मेथड है, एनरिचमेंट करने की अलग अलग मेथड है गैंग को रिमूव करने के लिए. लेकिन उसका जो इट इज द it is on the base it is based on the differences between the physical and chemical properties of the gang and the ore. डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड. तो कई सारी मेथड्स है, जैसे कि कोई और के साथ अगर आयन की इम्प्योरिटी है तो जो मैग्नेटिक सेपरेशन करना पड़ता है. अगर लीड या तो टीन की इम्प्योरिटी है तो उसको मेल्ट करके, क्योंकि लीड और टीन है वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल्स है, तो उसकी जो गैंग है उसको रिमूव करने के लिए मेल्टिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है. अगर पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स और पार्टिकल्स का अगर डेंसिटी में, पार्टिकल्स की डेंसिटी में अगर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से दूर किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है. तो अलग अलग मेथड है वो एम्प्लॉय की जाती है, जिसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है पार्टिकल और गैंग की, उसके हिसाब से ये एम्प्लॉय की जाती है. एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स low in the reactivity series. Metals low in reactivity series is very unreactive. तो लो रिएक्टिविटी सीरीज, अच्छा, मेटल्स जो लो एक्टिविटी सीरीज में जो उसकी रिएक्टिविटी लो है उसको, जैसे कि कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जनरली ये ऑक्साइड फॉर्म में होती है. और वो ऑक्साइड को सिंपली हम हीट करते हैं तो ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर हमको प्योर मेटल मिल जाती है. एज फॉर एग्जाम्पल, ओर ऑफ मर्क्यूरी HgO कॉल्ड सिनाबार. when it is heated in air, it is first converted in a mercuric oxide. On heating in air, on further heating it is reduced mercury. तो अगर उसको ज़्यादा हीट करते हैं तो मर्क्यूरिक सल्फाइड से मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ऑक्साइड भी रिमूव, ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होके बाद में मर्क्यूरी मिलता है. तो ये पूरी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हमको समझने के लिए ये दो रिएक्शन में हमने कन्वर्ट किया है. नाउ extracting metals in the middle of the reactivity series. तो metals in the middle of the activity series are moderately reactive. As for example, iron, zinc, lead, copper, etc. Mostly they are obtained in the combined form sulfide and carbonates.
तो सल्फाइड और कार्बोनेट, तो सल्फाइड के लिए अलग प्रोसेस है, कार्बोनेट को अलग करने के लिए अलग प्रोसेस है, जो हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जैसी प्रोसेस का यूज करते हैं. तो दिस सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बिकॉज इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट. सल्फाइड और कार्बोनेट से मेटल को ऑब्टेन करने से ज़्यादा टाइम बचता है ऑक्साइड से सीधी मेटल को कन्वर्ट करने में. तो रोस्टिंग इज द फर्स्ट मेथड. इट कन्वर्ट सल्फाइड टू ऑक्साइड. The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in presence of excess air. तो जिंक सल्फाइड, जिंक है वो सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों तरीके की ओर से मिलता है. तो जिंक सल्फाइड when heated in presence of excess air, it converted into zinc oxide, and sulfur is removed to form sulfur dioxide in the form of sulfur dioxide. Now zinc oxide is converted into zinc by reduction process. Now calcination. The carbonate ore are changed into oxides by heating strongly in limited supply of air. This process is called the calcination. The calcination zinc carbonate, when heated in a moderate supply of oxygen, it gives zinc oxide and carbon dioxide. The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या कि कार्बन है वो ऑक्सीजन, कार्बन का अट्रैक्शन ऑक्सीजन से ज़्यादा है, जिंक का ऑक्सीजन से कम है, लेकिन कार्बन का ज़्यादा है. तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के वो निकल जाएगा और जिंक रिड्यूस हो जाएगी, जिंक हमको मिल जाएगी. तो ये सिंपली रिडक्शन प्रोसेस तो है, लेकिन साथ साथ वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है. Besides using carbon coke to reduce metal oxide to metal, sometimes displacement reaction also used. Highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, potassium, etc. are used as a reducing agent because they can displace metal of lower reactivity from their compound, because they have a high attraction towards oxygen. When manganese dioxide, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, मैंगनीज मेटल इज डिस्प्लेस्ड और रिड्यूस्ड एंड ऑब्टेन इन अ मोल्टन स्टेट. तो मैंगनीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम का पाउडर, और उसको हीट किया जाता है, साथ में हीट किया जाता है, तो उसके बीच में रिएक्शन होती है, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस भी होती है. हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. वो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, एक तो जो ऑब्टेन होने वाली जो मेटल है वो मोल्टन स्टेट में मिलती है. ऐसी एक प्रोसेस है थर्मिट प्रोसेस. ये वैसे थर्मिट प्रोसेस ही है, लेकिन थर्मिट प्रोसेस का प्रॉपर यूज़ है वो जो रेल ट्रैक्स है और बड़े बड़े मशीन्स है, अगर उसके स्पेयर पार्ट में क्रैक आ जाती है, या तो रेलवे की पटरी में क्रैक आ जाती है, तो उसको भरने के लिए ये थर्मिट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 पे एक फोटोग्राफ दिया गया है, तो वो जरा देख लेना, क्योंकि वो थर्मिट प्रोसेस का है, जो रेलवे ट्रैक को रिपेयर करने के लिए थर्मिट प्रोसेस का यूज़ किया गया है. More reactive metal displace less reactive metal from its solution of their compounds. Such displacement reactions are highly exothermic. And अच्छा, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है. द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट. वो मोल्टन मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है मेटल. This above reaction is called the Thermit reaction. As for example, the reaction of iron 2 oxide. Iron 2 oxide मतलब Fe2O3. Sorry, Fe3O. Fe2O3.
with aluminium powder forms molten iron, which is used to join railway cracks or cracked machine parts. तो ये आयन है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है, जिससे कि जो अंदर की जो क्रैक्स है वो फिल हो जाती है और फिर से वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से वो पार्ट या तो रेल ट्रैक है वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. तो Fe2O3 plus aluminium gives aluminium oxide and iron and plus heat. So high heat is produced. Now extracting metals at the top of the activity series. They are highly reactive. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, they are highly reactive. They can't be obtained from their compounds by heating with carbon because these metals have a more affinity for oxygen than carbon. तो कार्बन से ज़्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ऑक्सीजन ये हाई है. तो कार्बन से उसका रिडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. फॉर दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड. तो मोल्टन क्लोराइड, अगेन मोल्टन क्लोराइड में इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करके उसमें से प्योर मेटल है वो मिल सकती है. कैसे? तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड while chlorine is liberated at the anode in the electrolytic cell. तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो इसमें जो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं. और हमको एनोड हमको कैथोड पे प्योर मेटल मिलती है. सपोज यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि Na+ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करके सोडियम बन जाता है, मतलब मेटल में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इट इज ऑब्टेन ऑन कैथोड. एट एनोड क्लोरीन है वो क्लोराइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है मतलब के एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है वो लूज हो जाता है. 2 क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, क्लोरीन गैस बन जाता है जो हमको एनोड पे मिलता है. सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3. नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. यहाँ से ऊपर ऊपर हमने जो ये सब रिएक्शन की है उसमें जो मेटल हमने रिड्यूस की है वो प्रॉपरली प्योर नहीं है, इसीलिए हमको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना पड़ता है. तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि कैथोड है वो प्योर, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कॉपर का प्योरिफिकेशन. तो कैथोड प्योर कॉपर का, एनोड इम्प्योर कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और एनोड के नीचे एनोडिक मड. हाँ, ये एनोडिक मड तो मिलता है लेकिन हम बाद में बताएंगे. मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड. तो इम्प्योर मेटल को एनोड, प्योर मेटल को कैथोड एंड अ थिन स्ट्रिप of pure metal is taken as cathode. A solution of metal salt is used as an electrolyte. तो मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन जो पानी में बनाया गया है ऐसा सॉल्यूशन. Arrange the apparatus as per the diagram. On passing the electric current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolved into electrolyte. तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर से कॉपर के आयन से वो ये सॉल्यूशन में आएंगे और ये सॉल्यूशन के जो कॉपर है, जितने कॉपर अंदर आएंगे उतने ही कॉपर के आयन कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा.
धीरे धीरे ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो धीरे 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 कोरोड होता जाएगा और ये उसके ऊपर डिपॉजिट होके ये कॉपर है यहाँ पे प्योर मिलेगी। और एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज, एज ए एनोडिक मड हमको इम्प्योरिटीज मिलेगी। ये इम्प्योरिटीज जिसको एनोडिक मड बोला जाता है एनोड के ठीक नीचे मिलता है। तो यहाँ पे एट एनोड के कौन सी, तो कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से प्योर कॉपर के आयन बनेगा और प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट होके कैथोड पे मिलेगा। तो नेट रिएक्शन कॉपर इम्प्योर से कॉपर प्योर होगा। The soluble impurities pass into the solution while the insoluble impurities such as gold, silver, platinum are deposited at the bottom of the anode and are called anodic mud। तो ये टॉपिक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं। नाउ इंटेक्स क्वेश्चन में जो होमवर्क में है वो करना है और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट थियरी है, वो शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती है। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस समझ के तुम लोगों को ये लर्न करना है। थैंक यू।